Good morning, students. So, in that last lecture, we have discussed about the batteries. Okay. So, in that types of battery, uh, we have syllabus only lead acid battery. So, in yesterday lecture, we have already discussed about the construction of lead acid battery and its working and its various components also. So, in that today's lecture, we have discussed about the various battery testings. So there are three types of battery testings. First is a specific gravity test, second is the open hole test, and third is a cadmium test. So in that specific gravity test, so it depends upon the specific gravity value and its battery conditions. So in that, if have specific gravity value 1.220 to 1.230, then the battery condition is fully charged. If the gravity value is 1.200 to 1.210, then 75% charge. If 1.175 to 1.185, then 50% charge. If 1.150 to 1.160 means it is a 25% charge battery conditions. And if value is 1.125 to 1.135, it means a very little charge. And if 1.100 to 1.110, it means it's the battery is completely now discharged. Okay. So there are some specific gravity value, and it's according to this value having some battery conditions also. So you have to sorry 8 minutes. Okay. So now the second test is open hole test. In that open hole test also having some voltage value and its battery conditions. If voltage value is 12.66 volt, then battery condition is fully charged. If value is 12.45 volt, then 75% charge. If value becomes 12.24 volt, means 50% charge, and if values become 12.06 volt, then 25% charge. Okay. So there are also some values with the comparison is open voltage with battery condition. And last test is cadmium test. So the test is done to ensure whether the battery plates are defective or not. So इस टेस्ट के अंदर वो डायरेक्टली प्लेट्स जो रहते पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट्स उसका टेस्टिंग होता है, और वो प्लेट्स की कंडीशन चेक करते हैं वो प्लेट्स डिफेक्टिव है या फिर शुरू है. ठीक है. अभी केयर ऑफ बैटरी. Okay, now we discuss about the care of battery. What is precaution which should be taken for a good lifestyle of battery? So there are first care is make sure that the battery is clamped firmly in the battery frame. So you have to be sure about the clamping of battery, that is it is well settled in the battery frame or not. The second, check electrolyte level in the battery at least once a month. So that is we have discussed in yesterday lecture, that is the sulfuric acid. Okay, so as a sulfuric acid used as an electrolyte in the battery. So in that month, at least in one times you have to check the electrolyte level, that is well or not. Also, next is after filling electrolyte, make sure that filler caps are firmly closed. So when you fill the electrolyte in a battery, so after that you have to check the filler caps are tightly closed or not, because if the filler cap are not very tightens, so there are chance to electrolyte solution is remove outside the battery, and it's damages of battery. Then check the specific gravity of electrolyte in each cell with hydrometer, and then check battery voltage with voltmeter. So there are some devices also, hydrometer that is used for the check the specific gravity, and that is a voltmeter used for to measure the voltage of a battery and replace the damaged fuses of same ampering rating. And उसमें कुछ फ्यूजेस भी होते हैं जो एम्पेयर रेटिंग बताता है बैटरी का. अगर वो फ्यूज डैमेज हो गया है तो उसे इजीली हम उसे जल्दी से जल्दी हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो रीडिंग फिर प्रॉपर नहीं दे सकता. ओके. इसके बाद आपका टॉपिक है स्टार्टिंग सिस्टम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. सो इन द स्टार्टिंग सिस्टम, द स्टार्टिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन ऑटोमोबाइल. सो स्टार्टिंग सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक ऑटोमोबाइल में हार्ट माना जाता है, क्योंकि जब हम
स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तभी गाड़ी का पूरा सिस्टम क्या कहता है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग सिस्टम क्या होता है, हार्ट होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम इन ऑटोमोबाइल का। द स्टार्टिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरीज इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू टर्न द इंजन ओवर। तो अभी स्टार्टिंग सिस्टम क्या करता है, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तभी कहते हैं अपना इंजन रनिंग कंडीशन में आ जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बैटरी, स्टार्टर मोटर, सोलेनॉइड, न्यूट्रल सेफ्टी स्विच एंड इग्निशन स्विच, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है उसके, मैं आगे आपको डायग्राम में सारे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी बैटरी में आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स उसने बताए, जैसे कि बैटरी हो गया, उसके बाद ये स्टार्टर सर्किट बोलते हैं इससे, ये इग्निशन स्विच है, ये स्टार्टर सेफ्टी स्विच है, उसके बाद इसको कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, इसे सोलेनॉइड बोलते हैं, उससे स्टार्टर मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसका वर्किंग किस तरह से होता है। So when key is inserted to ignition switch and turned to start position, a small amount of current passes through the neutral safety switch to starter relay or starter solenoid. Starter solenoid allows high current to flow through the battery cables to the starter motor. अभी इसमें क्या आता है, when we जब हम क्या करते हैं इग्निशन स्विच को घुमाते हैं, ठीक है, जब हम इग्निशन स्विच को हम घुमाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में या फिर उस डायरेक्शन में, जब हम स्विच घुमा रहे हैं तो स्विच घुमाने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो एक करंट पास होने वाला है, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, एक करंट आएगा बैटरी में से, बैटरी में से करंट आ गया यहाँ तक। जैसे हमने स्विच को घुमाया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अभी करंट को सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्टर सेफ्टी स्विच है, यहाँ से वो करंट सप्लाई हो गया, वो सीधा जाएगा सोलेनॉइड तक, ठीक है, वो चला गया अभी सोलेनॉइड तक। अभी इसके बाद जैसे करंट यहाँ पे चला गया तो अभी सोलेनॉइड के पास वो चला गया, और दूसरे डायरेक्शन से जो स्टार्टर सर्किट है यहाँ से भी करंट आएगा आपके सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। हाई करंट क्या आ गया, सोलेनॉइड के अंदर आ गया, देखो यहाँ पे उसने बताया था। न्यूट्रल सेफ्टी स्विच टू स्टार्टर रिले और स्टार्टर सोलेनॉइड अलाउज हाई करंट टू फ्लो थ्रू द बैटरी केबल्स टू द स्टार्टर मोटर। तो सोलेनॉइड क्या करता है, हाई करंट फ्लो होने के लिए बैटरी से हेल्प करता है। तो यहाँ से भी एक करंट आएगा और यहाँ से भी एक करंट चला गया, तो वो करंट फिर जाएगा आपके स्टार्टर मोटर को रन करने के लिए, ठीक है। हम क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वो जो करंट है उसको हम भेज रहे हैं स्टार्टर मोटर की तरफ, ठीक है। हम जैसे यहाँ से करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, जैसे बैटरी में से करंट यहाँ पे सोलेनॉइड तक आ गया, तो हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इसको स्विच कर रहे हैं कि तू अभी स्टार्टर मोटर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अभी वो करंट जाएगा स्टार्टर मोटर की तरफ, और मोटर क्या होगा, अभी घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मोटर अभी घूमना शुरू हो जाएगी, और यहाँ से कुछ करंट फिर से जमीन की तरफ यानी कि ग्रेविटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद द स्टार्टर मोटर देन क्रैंक द इंजन सो दैट द पिस्टन मूविंग डाउनवर्ड एंड कैन क्रिएट अ सक्शन दैट ड्रॉज एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द सिलेंडर। तो अभी जैसे ही स्टार्टर मोटर आपकी रन होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इसको भी घुमा देगा, ठीक है, इस गियर को घुमा देगा, और आपका जो भी पिस्टन है, आपका जो भी पिस्टन है, तो पिस्टन और नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि यहाँ पे उसने वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दी एयर के लिए, ठीक है। एयर के लिए भी उसने यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दी, और जैसे एयर अंदर जाएगी, अंदर आ जाएगी, तो पहला स्ट्रोक आपका शुरू हो जाएगा, और एज जैसे जैसे हम इसको स्विच करंट पास हो रहा है बैटरी में से, तो वहाँ पे इंजन फिर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग होता है एक इसका स्टार्टिंग सिस्टम का, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।